جہاں روزے کی فرضیت کا حکم آتا ہے اس کے اختتام پر دعا کا ذکر بھی آتا ہے۔ جیسے روزہ ایک عبادت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ بلکہ دعا کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، تمام عبادات میں سے بہترین عبادت ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ دعا کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ یوں ذکر آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات آپ انہیں بتا دیجئے شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ انسان اپنے خالق کے ساتھ جس طرح مناجات کرتا ہے اور جس طرح اس کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، یہ مخلوق اور خالق کے بہترین تعلق پر دلیل ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ضرورت مند ہے، خواہ کوئی فقیر ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر شخص کسی نہ کسی طرح ضرورت مند ہے۔ اور انسانوں میں سے ہر انسان چونکہ ضرورت مند ہے اس لیے اس قابل نہیں کہ وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اس کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو سب کو دینے پر قادر ہو، اور وہ اللہ رب العزت ہی کی ہستی ہو سکتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو تمام تر ضروریات پوری کرتا ہے۔ دین اسلام میں دعا کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں کئی ایک احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ یعنی ایک شخص جب اللہ رب العزت کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ موقع بندے کی عظمت کا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب کا ہے۔ کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ انسان کی تقدیر تک بدل دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ دعا ان مشکلات میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے جو اس پر آ چکی ہو، اور ان آفات میں بھی فائدہ مند ہے جو ابھی نہ آئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا، اور اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اسے دعا کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عنایت ہے کہ بندے کو دعا مانگنے کی توفیق ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی اسے دعا کی توفیق ہو گئی، اس کے لیے گویا رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ چیز عافیت ہے۔ اور عافیت کا مطلب کیا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ہر طرح کی آفات اور مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھ۔ دعا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے، کسی نہ کسی شکل میں انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی فرمایا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں، بعض کے بدلے میں آفات ٹال دی جاتی ہیں، اور بعض آخرت کے اجر کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہیں۔ اور آخرت میں انسان جب اپنی دعاؤں کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بندہ اس سے مانگے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لیکن عام طور پر جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ ایک شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں، قبولیت کے نہ ہونے میں
कुछ और वजूहात हो सकती हैं। मसलन ये कि हमारे दुआ मांगने का तरीका ही दुरुस्त न हो, या दुआ मांगने में वो आगोजारी न हो, वो संजीदगी न हो, वो खुशू खुजू न हो जो मतलूब है। तो इसलिए जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी दुआ कबूल हो तो उसे दुआ के आदाब से भी वाकिफ होना चाहिए। दुआ मांगने के आदाब में सबसे पहला अदब यह है कि मांगने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ की जाए, तस्बीह पढ़ी जाए, मसलन सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह अल्लाह ताला की हम्द व सना के कोई भी कलिमात, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजा जाए, क्योंकि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है ये दुआ रद्द नहीं होती। फिर इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो तो हमें दुआ पूरी तवज्जो और यकसूई के साथ करनी चाहिए। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से कबूलियत के मुकम्मल यकीन के साथ दुआ करो, यानी ये यकीन रख के दुआ करो कि दुआ कबूल हो जाएगी। दिल में शक नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी नहीं होनी चाहिए। और याद रखो, अल्लाह ताला गाफिल और बेध्यान दिल की दुआ कबूल नहीं करता। यानी अगर दुआ कबूल नहीं होती तो उसमें खुद हमारा अपना ही कसूर हो सकता है। और हमें मालूम होना चाहिए कि क्या हम दुआ के आदाब को मलहूज रखते हुए दुआ कर रहे हैं या दुआ महज एक दुआ ही है और चंद अल्फाज ही है। फिर इसी तरह दुआ के लिए हाथ उठाना मसनून है, लेकिन अगर कोई शख्स हाथ उठाए बगैर दुआ कर रहा है, चलते फिरते लेटे हुए, तो भी दुआ कर सकता है। इसी तरह यह है कि मामूली से मामूली चीज भी अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। सहाबा कराम का तरीका ये था कि जूती का तस्मा भी टूटता तो पहला ख्याल उनके दिल में अल्लाह ताला ही का आता कि उससे मांगे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे औकात हैं कि जिनमें अगर दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। मसलन रात के आखिरी हिस्से में और रमजानुल मुबारक में आप हर रोज शहरी के लिए उठते हैं तो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त खास तौर पर दुआ कीजिए। इसी तरह आजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल की जाती है, उस वक्त दुआ भी लौटाई नहीं जाती। बाज लोग आजान हो रही होती है और वो बोल रहे होते हैं, या ये कि आजान होती है और वो इधर उधर कामों में मशगूल हो जाते हैं और यकीन के साथ उसका जवाब नहीं देते। तो इस सिलसिले में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है वो कुछ यूं है कि जो शख्स आजान का जवाब यकीन के साथ देता है, नहीं तवज्जो के साथ देता है और उसके बाद दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। फिर इसी तरह सजदे में दुआ कबूल होती है। जुमे के दिन एक खास घड़ी होती है जिसमें दुआ कबूल की जाती है। फिर मैदान जंग में जब एक मुजाहिद सफों में खड़ा होता है उससे दुआ कबूल होती है। बारिश नाजिल होने के वक्त दुआ कबूल होती है क्योंकि वो अल्लाह ताला की रहमत बरस रही होती है। फिर इसी तरह यौम अरफा यानी हज के दिन 9 ज़ुल्हज को दुआ कबूल होती है। फिर इस तरह जमजम पीते हुए दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। बहुत से लोग जमजम पी रहे होते हैं, अपने ऊपर डाल रहे होते हैं आज उम्रे के मौके पर, लेकिन दुआ मांगना भूल जाते हैं, हालांकि वो भी कबूलियत की घड़ी है। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। उनमें मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ, बात की दुआ, अपने बच्चों के हक में, गाजी की दुआ यानी एक शख्स मैदान जंग से कामयाब लौट रहा है, हज और उम्रा करने वाले की दुआ जब वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा हो, और उन मौकों पर भी इसी तरह औलाद की दुआ अपने वालिदैन के लिए जबकि वो नेक हो, वालिदैन के फरमाबरदार हो। फिर इसी तरह खुशहाली और फराह में दुआ करने वाले की तंगी और मुसीबत के वक्त दुआ कबूल होती, यानी वो शख्स जो खुशी के वक्त, आराम के वक्त, किसी परेशानी के बगैर अल्लाह ताला से ताल्लुक रखता है, दुआ करता रहता है, तो ऐसे शख्स पर जब कोई मुश्किल आती है और उस वक्त वो दुआ करता है तो उसकी दुआ भी लौटाई नहीं जाती। वरना वो शख्स जो सिर्फ मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला को पुकारे तो फरिश्ते उसकी जब दुआ सुनते हैं तो कहते हैं कि अजनबी सी आवाज मालूम होती है, इससे पहले किसी कभी अपने रब को याद नहीं किया था। फिर रोजेदार की दुआ, खासतौर पर इफ्तार के वक्त, बहुत से लोग उस वक्त को भी सही तौर पर इस्तेमाल नहीं करते और इधर उधर की बातचीत में गंवा देते हैं। फिर बीमार की दुआ, फिर मुसलमान भाई की अदम मौजूदगी में, उसकी गैर हाजिरी में उसके लिए दुआ। फिर इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती। हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि कहीं हम तो उनमें से नहीं। और ये खासतौर पर इसलिए भी कि बहुत से लोग दुआ करते हैं और अगर फौरी तौर पर कबूल नहीं होती तो मायूस हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हम तो शायद अल्लाह ताला के नापसंदीदा बंदे हैं, इसलिए हमारी तो सुनी ही नहीं जाएगी, और वो मांगना छोड़ देते हैं। हालांकि ना मांगने पर भी अल्लाह ताला की नाराजगी होती है। इंसानों से जो मांगता है इंसान उससे नाराज होते हैं और अल्लाह ताला उससे जो उससे मांगता नहीं। अल्लाह ताला को ये बात बहुत पसंद है कि बंदे उसकी तरफ रुजू करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और उसी से मांगे। लेकिन कुछ हालतें ऐसी हैं
کہ जिन से इंसान जब तक निकलता नहीं, गुनाहों से माफी नहीं मांगता, उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। जिसमें सबसे पहले रिस्क हराम खाने वाले की दुआ, फिर इसी तरह रिश्तेदारियों को काटने वाले की दुआ, वो भी कबूल नहीं होती, क्योंकि कतई रहमी अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। फिर गफलत और लापरवाही से मांगी हुई दुआ, जैसे कोई दिलचस्पी नहीं, कोई शौक ही नहीं। फिर इसी तरह जो लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम न दे, नेकियों का हुक्म न दे, बुराइयों से रोके नहीं, उनकी दुआएं भी एक वक्त आता है कि फिर कबूल नहीं होती। इसी तरह एक और बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि दुआ सिर्फ परेशानी और मुसीबत में ही न मांगे। फिर यह कि दुआ मांगने के लिए किसी खास उम्र की कोई कैद नहीं कि आप बुढ़ापे में दुआएं मांगे, और अगर आप बच्चे हैं या जवान हैं तो आप सोचो कि अभी तो मेरे मांगने के दिन नहीं, या ये कि अगर आपके पास अपनी जरूरत की सब चीजें मौजूद है तो आप सोचे और क्या मांगना है। नहीं, अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान है आखिरत का। आखिरत के लिए दुआएं मांगनी चाहिए। अगर दुनिया में फौरी तौर पर कोई ऐसी मुश्किल या कोई ऐसी जरूरत आपके सामने नहीं, और बच्चों को खास तौर पर दुआएं सिखानी चाहिए, उनको मांगने के आदाब बताने चाहिए, क्योंकि फिर वो जिंदगी का एक हिस्सा हो जाती हैं। और अगर हम आमतौर पर जिंदगी में चंद कलिमात आदतन भी शामिल कर लें जो कि दुआया कलिमात है, तो ये भी हमारे अपने लिए और जिसके लिए हम दुआ दे रहे हो फायदेमंद हो सकते हैं। मसलन अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, ये भी एक दुआ है। जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा बदला दे, ये भी दुआ है। फिर इसी तरह बारकल्लाहु लका, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बरकत पैदा करे। तो गोया बहुत से कलिमात ऐसे हैं जो बजाते खुद एक दुआ है, इस्लामी अखलाक और अदब का हिस्सा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आदाब से माला माल कर दे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं दुआ से मुताल्लिक। मैडम, क्या आप इस बात की वजाहत कर देंगी कि क्या हम लोग अपनी जुबान में चलते फिरते दुआ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मांग सकते हैं। यानी दुआ मांगने के लिए ये शर्त नहीं कि आप मुसल्ले पर ही बैठे या किसी खास जगह पर बैठे या जरूरी तौर पर बावजू हो। दुआ दरअसल अल्लाह ताला के साथ एक गुफ्तगू भी है, अपने दिल का हाल सुनाना भी है, और एक ताल्लुक का नाम है। दुआ अल्लाह और बंदे के दरमियान एक गहरा ताल्लुक पैदा करती है। इसलिए उसके लिए फॉर्मल वे में भी मांग सकते हैं आप, और इनफॉर्मल वे में भी। अगर आप देखें तो सुबह सवेरे जागते ही हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये क्या है? ये दुआ है। हमने वो दुआ किस वक्त मांगी? बिस्तर से उठते हुए। फिर हम कॉलेज जा रहे हैं, हम दुआ मांग रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, वुजू करने के बाद दुआ मांग रहे हैं। ये सब दुआएं हम कहाँ मांगते हैं? इनके लिए ना तो हाथ उठाते हैं, ना ही बैठते हैं। बाजुकात हम खड़े होकर मांग लेते हैं, बाजुकात चलते चलते भी मांग लेते हैं। तो चलते फिरते भी दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला से इंसान किसी भी वक्त कुछ भी मांग सकता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।